السلام علیکم۔ اس وقت ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں ان کا احتجاج کافی دنوں سے جاری ہے، اور اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر کا جو احاطہ ہے وہ چاروں اطراف سے بند ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ خواتین نے اپنے جو لاپتہ افراد ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، ان کی تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مہذیب بلوچ۔ اچھا، مہذیب بلوچ کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ مہذیب، آپ کا یہ جو تصویر آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، کون ہے آپ کی یہ؟ یہ میرے چاچا ہے۔ اچھا، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ان کو 2018 میں UAE سے گرفتار کیا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب پولیس سے یا مطلب جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کی کہ کیا ہے مطلب قصور کیا ہے، اس طرح کی کوئی ہوئی بات؟ نہیں، جب انہیں جو ہے اپنی تحویل میں کر کے لاپتہ کر دیا تو ہم نے دبئی کے جو حکومت سے ریکویسٹ کیا، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارے اگر شخص نے آپ کے ساتھ یا آپ کے ملک میں کسی غیر قانونی کارروائی کی ہے تو آپ اس کو جو ہے فیئر ٹرائل کا موقع دے دیں، آپ یا عدالت میں اپنا وہی پروف کے ساتھ انہیں پیش کر دیں، مگر آج تک ہمیں نہیں معلوم۔ پھر 22 جون 2019 کو انہیں پاکستان ڈپورٹ کیا گیا، اور پاکستان کی بھی عدالتوں میں ہم نے یہی پوچھا ہے کہ بھئی ہمارے شخص پہ، ہمارے جو ہے پیاروں پر اگر کسی بھی قسم کی جو ہے الزام لگائی گئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ایسا قانونی غیر قانونی کارروائی کی ہے تو آپ اس کو جو ہے عدالت میں پیش کریں، آپ کسی پروف کے ساتھ انہیں عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر وہ مجرم ہے آپ انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دے دیں، انہیں جو ہے جرم کے تحت آپ انہیں سزا دے دیں، مگر اس طرح سالوں سال انہیں جو ہے زندان میں قید نہیں کر تو سکتے۔ 2018 کے بعد وہ UAE میں وہ لاپتہ ہو گئے، یا وہاں کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو اٹھایا، یا پھر اس کے بعد اگر یہاں پہ لایا گیا تو آپ لوگوں کی کوئی ملاقات ہو سکی یا کوئی کمیونیکیشن ہو سکی اپنے انکل کے ساتھ؟ نہیں، جب انہیں پاکستان ڈپورٹ کیا گیا تو جیو نیوز، آج نیوز اور دیگر سوشل میڈیا میں دکھایا گیا۔ میرے پاس پروف بھی ہے ان چیزوں کا۔ میں عدالت میں جب جاتی ہوں تو میں ان کے سامنے یہ سارے ثبوت رکھتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ کا جو چاچا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہوں، آپ کے سامنے جواب کے ساتھ پروف بھی رکھتی ہوں، پھر آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ میرا چاچا کس تھرو پہ دہشت گرد ہے؟ نہیں، یہ عدالت نے کہا ہے یا جی کہاں جی، سے؟ عدالت نے ہی ہمیں کہا ہے، کیونکہ جب ہماری GRTs ہوتے، پیشیز ہوتے، وہاں ہم جاتے، صرف ہمیں یہی کہا جاتا ہے بھائی آپ کا بندہ دہشت گرد تھا، اٹھایا گیا۔ ارے دہشت گرد تھا کیسا؟ آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ ایک ملک چلا رہے ہیں، آپ اپنے ہی کانسٹیٹیوشنز کو فالو نہیں کر رہے، پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر اگر کوئی ثبوت آ جائیں آپ کے سامنے، پھر کیا؟ تو یہی کہتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، ثبوت آ جاتا ہے، آپ ہمارے لوگوں کو قانونی کارروائی کے تحت، عدالتوں کے ایک جج کے آرڈر کے تحت آپ انہیں کسی بھی قسم کا سزا دے دیں، آپ بے شک انہیں پھانسی دے دیں، ہمیں منظور ہے، مگر انتظار ہمیں کسی بھی مطلب صورت میں ابھی نہیں۔ تک فیصلہ کوئی نہیں آیا؟ نہیں، کسی بھی ادارے کی طرف سے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آپ لوگوں کے لوگ زندہ ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کے لوگ جو ہے آپ لوگوں کے انتظار کرے بھی نہیں، ایک نہیں، بیوی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا چاچا جو ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ ادارے کہتے ہیں یا عدالت کہتی ہے؟ کون کہتا ہے؟ دیکھیں، عدالت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے لوگ دہشت گرد ہیں، ادارے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لوگ بھاگ گئے، اور حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لوگ گرفتار نہیں ہیں، آپ لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کے لوگ دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، یا گرفتار جو لاپتہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم پوچھتے ہیں کس بیس پہ کہاں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ مطلب نہ کہ حکومت ایک بیسک سے جواب دیتا ہے، نہ یہاں کا انتظامیہ دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی۔ اچھا، یہ ماحول جو ابھی تھوڑا سا پروگرام کے آغاز میں نے بتایا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، تو یہ پہلے دن سے ہے یا آج کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جب پہلا دن ہم کیمپ لگانے کی کوشش کی تب بھی تھوڑا بہت تھا، بختر بند اس طرح کی گاڑیاں وغیرہ منگوائے تھے، اور آج ہمارا چوتھا دن ہے۔ آج تو ہمیں پریس کلب کے قریب جانے بھی نہیں دیا، ہم بیچ سڑک پر یہاں بیٹھے، کیونکہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، نکلنے کی بھی راستہ نہیں ہے، اور بسز منگوائیں، ہمیں ڈپورٹ کرنے کی کوشش میں ہے، جس طرح ہمارے ساتھ پچھلے سال کیا۔ تھینک یو۔ کچھ مزید خواتین جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم میڈم، وعلیکم کیا حال السلام۔ ہیں؟ خیریت سے؟
मैडम अपना नाम बताएं और थोड़ा सा ये जो मैं गुलजादी की सिस्टर हूँ। किसकी गुलजादी की सिस्टर अच्छा हूँ। गुलजादी की सिस्टर हैं जी तो थोड़ा सा बताएं इनके केस के बारे में जी क्या है। गुलजादी एक सियासी कारकुन और स्टूडेंट है, और वो बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा बोलती थी, और वो हमेशा इन माओं और बच्चों की आवाज़ थी जो अफेक्टेड है, जिनके बच्चे लापता है। तो इन्हीं की पादाश में उसे जेल में कैद करके रखा। सबसे पहले उसे जिबरी तौर पर लापता किया, फिर उस पर झूठे केसेस लगा कर उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये कितना अर्सा हो गया। जी 4 महीने हो रहे हैं। अच्छा 3 महीने तो 3 MP को 3 महीने से ज़ायद 3 MPO का केस चला। उसके बाद उन्हें झूठी FIRs में फिर कोर्ट पेश किया, वहाँ पर उन्हें फिर से सिविल लाइन थाना शिफ्ट कर दिया गया रिमांड पे। तो 10 दिन के वो पूरा हुआ। अभी कल ही उन्हें फिर से अदालत में फिर से पेश किया, और जज ने उनकी बातें सुने बगैर ही उन्हें 15 दिन के रिमांड पर फिर से भेज दिया गया। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, इनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे अपने साथियों समेत। आज भी अगर वो बंद है तो इसी वजह से बंद है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत है, कुछ भी है, तो पेश करे और उनके मुताबिक उन्हें सज़ा दे। अगर कुछ नहीं है तो मैं सबसे अपील करती हूँ, इंसानी हकूक़ के इदारों से सबसे, कि उनकी आवाज़ बने। तो उनके ख़िलाफ़ जो FIRs हैं एक FIR है या बाकी भी हैं। जी 1-2 होंगे, क्योंकि जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ पर वो गए, वहाँ पे फेक FIR बनाए उन पे। तो FIR में क्या है कोई पढ़ा है आपने। जी हाँ, बस यही है कि अमन व अमान ख़राब करे, माहौल ख़राब करे, और यही कुछ है, और कुछ ज़्यादा नहीं है उनमें। तो आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत तो जी आप कह जी रहे हैं कि सज़ा दें फिर उनको। हाँ, सज़ा दे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है उनके पास। पिछले 3 महीने से रखा गया था, यही कह रहे थे कि कोई सबूत है तो पेश करें। उनके तहत आप उन्हें जितना रख सकते हैं रख ले, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं पेश किया। डेट पे डेट दिया जा रहा था, और फिर भी एक स्टूडेंट है, क्लासेस ज़ाया हो रहे हैं उसके पिछले 4 महीने से। तो ज़ाहिर है इस पे उसकी मतलब एक तो हमें तालीम का हक नहीं दिया जाता, और जब मिलता है तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं हमारे साथ। थैंक यू आपने सुना कि जो ख़वातीन यहाँ पे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके जो लवाहिकीन हैं उन्हें अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित होती तो बेशक आप उनको सज़ा दें, अगर नहीं होता तो फिर आप उनको रिहा करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं। शुक्र अल्लाह का। मैडम ये किसकी तस्वीर उठाई है आपने। ये मेरा शोर है। अच्छा 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 तो कितना अरसा हो गया ये इनको लापता हुई है। 6 साल हो गया। अच्छा 6 साल। जी हाँ। इसका मतलब है 2019 में ये लापता हुए हैं। जी हाँ, अच्छा 6 साल हो रहे। 3 बच्चे हैं इसका, मैं उसका बीवी हूँ। 6 साल अभी पहले भी एक दफ़ा मैं यहाँ पे डॉक्टर मारंग के साथ आया था। अभी डॉक्टर मारंग को कब्ज़ा किया, जेल पे डाला था। अभी हम लोग खुद आ गया था। हम लोग आते कसूरदार है, अदालत में पेश करो। इसका छोटे हमको पता नहीं है क्या कसूर है, तुम लोग इसको ये पकड़ कहाँ लेते। से लापता हुए थे। कोटे से, कोटा शहर। क्वेटा शहर से। जी हाँ। अच्छा तो मतलब क्या कोई FIRs वगैरह हैं या जी कोई। हाँ, अदालतों में पेशी दे रहा हूँ हम लोग। तो बार बार अदालतों में जाएंगे। 3 महीने के अंदर हम पेश होता है। हम एक पेशी भी गैर हाज़िर नहीं हो गया था, हम पेश होता है। बोलता अल्लाह खैर करे, आस्ता आस्ता। हाँ, क्या कसूर है, अदालतों में पेश करो। कसूर तो नहीं है, उसके बाद आप करो। तो जब से ये लापता हुए हैं जी हाँ। उसके बाद आपकी इनसे मुलाकात हुई है कोई। नहीं हो गया था। एक फ़ोन भी नहीं आ गया था, मुलाकात और एक बात है। जी हाँ। या कोई पता चला हो कि किसी जेल में है या कहीं और। नहीं, लापता है, लापता है। कोई एक चीज़ भी मालूम नहीं है इसका। अच्छा हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग ने बच्चे के लिए मालूम है, न उसका भाई के लिए, न हम लोगों के कोई भी मालूम नहीं है। तो अदालत क्या कहती है आपको जब वो आप अदालत जाते हैं। वो टाइम दे रहे 3 महीने के बाद आ, तो 3 महीने के बाद आ जाओ। इसका नाम कौन है, कैसे लापता हो गया, कहाँ से लापता हो गया, क्या काम में बाहर में गया था। वो शाम के कितना शाम के गया था दुकान पे के लिए, दूध के लिए गया था अपने बच्चे के लिए। रोज़े के महीने ईद के दिन था, ईद के दिन ना किसका 25 रोज़े के महीने 25 के दिन के था। वो बाहर गया था, वो बच्चे के लिए दूध ले के लिए गया था।
तो पेशा इनका क्या था, मतलब ऐसी कोई चीज़ आपके जहन में है कि मतलब कोई ना कोई शक इस पे पड़ता हो? नहीं नहीं, हम लोग को खुदा की कसम में शक नहीं पड़ता कि क्या कसूर है इसका, क्या मसला है, तुम लोग उसको उठा के ले गया था। हाँ, हम लोग कसम कहते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। तो बच्चे हैं आपके अगर वो? जी 3 बच्चे हैं हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, एक दिन भाई का घर, एक दिन बहन का घर, एक दिन पड़ोसी का घर। हम खुद कशीदा करते हैं, काम करते हुए अपना बच्चों के ख्याल करते हैं। तो मतलब वो अदालत में इनका चल रहा है क्वेटा में? जी जी हाँ, बिजली ताड़ा पे गया था और किस में वहाँ पे अदालतों में सब गया था, हम पेशी दिया था। अदालतों को पूछो हम कौन से गैरहाजिरी हो गया था, हम रोज़ हमको कॉल करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे, वो हाजिरी देंगे। जी हाँ, हम बलोच हैं, हमको उर्दू भी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा से आता है। चलो, जी तो हाँ। यहाँ पे जो रवैया है, जिस तरह आप देख रहे हैं, रास्ते बंद हैं, जी पुलिस हाँ। चारों तरफ से है। हाँ, ऐसे किया था, पहले तरफ भी हम लोगों को लाठी चार्ज किया था, ऐसे तकलीफ भी किया था, घर वालों परेशान है, अभी भी ऐसे किया था। हम लोगों को प्यारों की तस्वीर हमारे हाथों पे है, न लठ है, न बम है, न दूसरी चीज़ है। हम लोगों को क्या है, हम लोग हम खाली बात करने आए होता, पुलिस कर्मी के सामने बैठेगा, हमारा बंदा को बाजियाब करो, हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आया है आपके पास? नहीं आएगा तो उनका इंतज़ार हो नहीं आ रहा है। आप किससे, मतलब आप नवाज़ शरीफ से एक गुजारिश करना चाहेंगी, या मुतालबा, या आर्मी चीफ से, या चीफ जस्टिस से, या शहबाज शरीफ से, या मरियम से, किससे? मरियम साहब पहले आ गया था, वो नहीं काम करता था, वो खुदा की कसम भी लिया था, वो काम नहीं किया था। शाबाश शरीफ आएंगे और कोई आएंगे, हम सबको मंजूर है, कोई आ जाएंगे, हमारा मुजाहरा करेगा, हमारा बंदा को बाजियाब करे, किस वजह लापता है, अदालतों में पेश करे, अदालतों में मानता हूँ, अदालतों में पेश करो। जी हाँ, हम ऐसे दरपदर हो हैं तुम्हारा पास, अदालत में पेश करो, नहीं है उसका जवाब दो। थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने ख़वातीन की बात सुनी। हर किसी की अपनी कहानी है, किसी का भाई जो है वो लापता है, किसी की बहन जो है वो लापता है, और किसी का शोहर जो है वो लापता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन है यहाँ पे, सब लोग कहते हैं कि अगर हमारे प्यारे जो हैं उन्होंने कोई जुर्म किया है तो रियासत जो है वो उनको सामने लाए, उन पे केसेस चलाए। अगर उन पे कोई चीज़ साबित होती है तो बेशक आप उनको सज़ा दें, लेकिन कम से कम इतना हो कि वो उनको सामने लाया जाए। और ये जो लवाहिकीन हैं इनको पता चले कि इनके प्यारे जो हैं वो आखिर में हैं कहाँ पे। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।